Jesus told the story of the Pharisee who looked at that sinner and said, Lord, I thank you, I'm not like him. और यीशु ने फरीसी के बारे में बताया जो प्रार्थना करके कहता है प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उस पापी के जैसा मैं नहीं हूँ। Why was he क्यों ऐसा वो था? praising himself? और क्यों अपने आप को वो अपने आप की स्तुति कर रहा है? See Luke chapter 18. लूका 18। Now, I know many of you have read the Bible many times. मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वचन को बाइबल को पढ़ा है। How many of you have noticed to whom the Pharisee was praying? और आप में से कितने जानते हो फरीसी किससे प्रार्थना कर रहा था? You'd say he was praying to God. और आप कहेंगे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। That means you didn't read the Bible carefully. इसका मतलब आप वचन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। Now read it carefully. अभी ध्यान से पढ़े। Many years I've been telling people, read the Bible slowly. और मैंने कई बार लोगों से कहा कि वचन को बहुत धीरे से पढ़े। People say if I read it slowly, I won't finish it in 1 year. सो लोग कहते हैं कि अगर मैं धीरे से पढ़ूंगा मैं 1 साल में बाइबल को पूरा नहीं कर पाऊंगा। I'll tell you, in the beginning, when I had never read the Bible, I read it through in 6 months. और जब मैं पहले जब मेरा उद्धार हुआ तब मैंने 6 महीने में पूरा बाइबल Because पढ़ I लिया। wanted to know the whole thing. और मुझे पूरा बाइबल जानना था। But after that, लेकिन उसके बाद then I began to read it slowly. उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना आरंभ And किया। as time has gone on, now I'm a believer for 58 years, I'm reading more slowly now. अभी 58 साल विश्वासी होने के बाद में और भी धीरे धीरे वचन को So पढ़ता in the हूँ। beginning, you must read because you must know the whole Bible. क्योंकि आपको वचन जानना है आप उस So प्रकार पढ़े। I used to read 1 chapter every day. एक अध्याय को प्रतिदिन में पढ़ता। So in a few years, you can finish the whole Bible. और कुछ सालों में आप पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं। But as I began to read slowly, I discovered a lot of things I didn't discover when I read it fast. और मैंने इस चीज को देखा जब मैं धीरे धीरे वचन को पढ़ता हूँ, जब मैं उसको बहुत ही जल्दी पढ़ता And था। here's one of the things I discovered in Luke 18:11. और लूका 18:11 के अंदर He was praying to himself. और वहां हम पढ़ते कि वो अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा था। And what was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? What was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? God. परमेश्वर। See the first word? पहला वचन देखे He's वहां। praying to himself. और वो अपने आप से मन में Saying, प्रार्थना कर रहा है। God, I thank you. I'm not like others. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। At least he was honest there. He was his own God. और वहां पे वो ईमानदार था। He was his own God. वो अपने आप को खुद का परमेश्वर बन गया। See, that is what Jesus condemned like anything. और इसी चीज को परमेश्वर ने बहुत ही And इसको दोषित that ठहराया other है। man who wouldn't even lift up his head in the corner, और एक कोने में दूसरा व्यक्ति जो अपने सर तक उठाया नहीं जिसने, he said, God be merciful to me, a sinner, verse 13. और वो कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। Now, I don't know whether it comes out clearly in the Hindi. It's in English, it is very clear. और हिंदी में इतना साफ तौर से नहीं लेकिन It इंग्लिश में लिखा says, है। God be merciful to me, not a sinner, but the sinner. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मुझ पापी पर दया कर। That means, and it means in English, I am the only sinner in the whole world. Please be merciful to me. और इंग्लिश के अंदर इसका मतलब है कि मैं अकेला ही वो पापी हूं और मुझ पापी पर ही आप दया करें। If there are 5 chairs, you don't say a chair, you say one of these chairs. और अगर 5 कुर्सियां वहां पर है तो आप उसको एक नहीं कहेंगे। If there are a room, there's only one chair, you say the chair. लेकिन अगर एक ही अगर कुर्सी है तो उसको आप एक कुर्सी इस प्रकार कहेंगे। So he was saying the sinner. और उसने इस प्रकार का द सिनर, I am the only sinner in the whole world. इसका मतलब कि मैं अकेला ही पूरे विश्व when में a पापी man हूं। is really convicted of his sin, और इस व्यक्ति को पूरा आभास हो गया अपने पापों का he feels like that. कि उस प्रकार वो है। God, there cannot be a worse sinner than me. और वो कहते हैं मुझसे बदतर पापी और कोई नहीं हो सकता। Paul felt like that when he said, I am the chief of sinners. और पौलुस ने भी कहा कि मैं पापियों में सबसे मुख्य हूं। It's not artificially saying it to act humble. और ये एक दिखावा करने के लिए नकली तरीके में नम्रता में नहीं दिखा रहा वो। But I tell you, if you have never had such an experience, you have never really come before God at all. अगर आपके पास ऐसा अनुभव नहीं है तो आप सच में परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। I can't say I have that experience all the time. और मैं ये नहीं कह पाता कि हर एक समय मेरे पास There ऐसा are अनुभव some है, distinct times in my life I know clearly, लेकिन ऐसे समय मेरे जीवन के अंदर है, मैं जानता हूं अच्छी तरह where से, I'm absolutely convinced that I am the greatest sinner in the whole world. जहां मुझे एहसास हो जाता है कि मैं सबसे बदतर बड़ा पापी संसार में हूं। I wasn't quoting a verse, I am the chief of sinners. और मैं उस वचन को नहीं लेता कि मैं पापियों में मुखिया Even हूं, if it was not written, I would have felt like that. लेकिन अगर वो वचन नहीं भी लिखा हो तो फिर भी मुझे ऐसा एहसास Then I होता है। understood
how Paul felt like that. और मुझे समझ आता है क्यों पौलुस को इस प्रकार आभास हुआ। Now, God does not allow me to feel that all the time because I'll get thoroughly discouraged. और परमेश्वर मुझे ये आभास हर समय नहीं होने देता, अगर ऐसा होता तो मैं निराश हो I'm जाता। sure he gave that revelation to Paul sometimes. लेकिन कुछ समय परमेश्वर ने पौलुस को इस प्रकार प्रकाशन दिया, He gives it to me sometimes. और वो मुझे भी कई बार वो देता है Where you कुछ समय feel तक। like hiding your face in the dust before God. और तब हम पूरी तरह से परमेश्वर के सामने धूल में है उस प्रकार सोचते हैं। I'll tell you why. मैं कहता हूँ क्यों। When you're far away from a strong light, जब भी आप एक बहुत ही एक तेजस्वी प्रकाश, एक जो लाइट है उससे आप दूर होते हैं, you think your shirt is pretty clean. आपको लगता है कि आपका जो शर्ट है जो बहुत ही साफ सुथरा है, But the closer you come to the light, you discover certain things. लेकिन जैसे नजदीक उस लाइट के आप आते हैं आप कुछ देख पाते हैं, As you come closer and closer and closer, you say, hey, this is not so clean as I thought. और जैसे नजदीक नजदीक आते जाते आप सोचते कि जितना मैं सोच रहा था और- उतना साफ में नहीं है ये। It's like a microscope. You increase the power and you begin to see so much dirt which you didn't see before. और माइक्रोसॉफ्ट के समान उस गंदगी को जो पहले नहीं देख पाते थे अब उसको साफ तरीके से देख But पाते you हैं। look without a microscope, yeah, a few bits of dirt you can see. और माइक्रोसॉफ्ट के बिना हम कुछ थोड़ी मैल को देख पाते हैं। They say if you take a really powerful microscope and look at your hands, वो कहते हैं कि अगर बहुत ही एक मजबूत माइक्रोसॉफ्ट लेकर आप हाथ को देखें आप, you'll see there's so much filth there, even though you washed it with soap. अगर आपने साबुन से उसको धोया लेकिन फिर भी उसमें बहुत ही गंदगी होती है। It's like that when you come close to God. और उसी प्रकार जब होता है जब आप परमेश्वर के करीब Chap आते who हैं thinks his hand is clean, he discovers it's not so clean. There's so much bacteria and all there. और जब आप उसको दूर से देखते हैं आपको लगता है वो साफ है, जैसे आप करीब लाते देखते बहुत कीटाणु उसमें है। The further we are from God, the more holy we think we are. और जितना दूर हम परमेश्वर से रहते उतना अधिक हम अपने आप को पवित्र So समझते हैं। you can imagine how far the Pharisee was to think that he was a very holy person. और ये फरीसी देखो कितना दूर था, अपने आप को पवित्र समझ रहा था। But Paul came so close to God लेकिन पौलुस परमेश्वर के इतने that it नजदीक was आ like गया a magnifying glass over his heart. और अपने हृदय के ऊपर एक बहुत बड़े एक आईने के समान उस ग्लास से वो देख पाता है। He said, oh God, there cannot be a sinner worse than me. और वो कहते हैं मुझसे बदतर पापी और कोई नहीं हो सकता। Even though he was the holiest man on earth. इससे वो सबसे पवित्र व्यक्ति था फिर भी। Pride is the thing that the devil uses to destroy people, और घमंड जो है शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों का नाश करने के लिए, which blinds us. हमको अंधा कर देता है। Pride blinds us, घमंड हमें अंधा कर देता makes है us deaf to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज के लिए हम बहरे बना देता है। Pride about earthly things or pride about spiritual things. और संसार की बातों का घमंड या आत्मिक बातों का It's घमंड, like a big chain on your leg. You cannot press forward. और एक बहुत ही बड़ी जंजीर जो आपके पैर में बांध दिया है, आप उससे And आगे नहीं बढ़ पाते। Pride is usually in what you are and what you have accomplished. और घमंड जो है जो आप है, आपने जो जो सिद्धियां प्राप्त की उसके बारे में है। There are people who are proud of the family they have come from. और बहुत लोग घमंड करते हैं जिस पृष्ठभूमि और परिवार से वो आते हैं। My parents are not from some low class Dalit family. और वो ऐसे घमंड करते कि मेरा परिवार जो कोई दलित या निचली जाति से नहीं है। Not the, I don't know, maybe among Dalits also there are different classes down below. और मैं नहीं जानता दलित के अंदर भी और बहुत ही निचली And जातियां say, होती I'm not होंगी, from there. और मैं इस प्रकार का व्यक्ति I'm नहीं a हूँ little higher level. और मैं बहुत ही उच्च जाति का हूँ। Such people will not grow spiritually. I can give it in writing, they will not grow और spiritually. मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, ऐसे लोग आत्मिक तौर से नहीं बढ़ सकते। I find this, I come from Kerala and I see much of this in Kerala Christians. और केरला से मैं हूँ, केरला में ऐसे बहुत सारे मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है। Many of them will have the house name as the first name of their full name. और उनका घर के नाम वो रखते हैं और अपने नाम का पहला ही नाम उस घर के नाम के आगे लगते हैं। Why do they put that? क्यों ऐसा करते हैं? To teach all of you, I am not from some ordinary family, remember. और ये दिखाने के लिए कि मैं कोई साधारण परिवार से नहीं हूँ। My first initial is the name, some big long name of my house. और मेरे घर का जो नाम है जो एक बहुत लंबा नाम जो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ। So I've met people like this. और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ They tell me what house they are from, और what family they are from. और वो ऐसा सोचते कि कौन सी पृष्ठ या परिवार से They वो ask आते me, हैं। Brother Jack, what about your family? और वो मुझे पूछते कि आपका परिवार के बारे में क्या। I say, I come from the family that was kicked out of Eden many years ago. और मैं उनको कहता मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको अदन की बाटिका से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, God kicked out my ancestor from Eden, और मेरे पूर्वजों को बाहर निकाल दिया, but He had mercy on me and saved me. लेकिन उसने मुझ पर दया की और मेरा उद्धार किया। I have nothing to boast about. और उसके लिए मेरे पास कुछ भी घमंड करने के लिए I नहीं don't है। have a big long house name in front of my name. और मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा नाम का तख्ती नहीं है।
If I have to put kicked out of Eden. That's all. अगर ऐसा होता तो शायद अगर मैं अदन की वाटिका से नहीं निकाला गया होता। There's so much of pride, we don't realize it's hindering your onward growth. It's a chain in your leg and you wonder why you're not becoming like Jesus. और बहुत सारा ऐसा घमंड हमारे जीवन में है जो एक जंजीर के समान हमको बांधे हुए है और उसके कारण हम सोचते हैं क्यों प्रभु में नहीं बढ़ पा Or रहे। it is our accomplishments. और हमारी जो सिद्धियां है, You cannot make progress if you're thinking of your past accomplishments. आप तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप अपनी सिद्धियों को ही सोच रहे हैं।